Friends, with us today Swami Krishnamritanand Ji Maharaj. Maharaj is a principal of Ramkishan Mission Vidyapeeth in Narayanpur, Chhattisgarh. Maharaj, just recently this first Swami Vivekanand Under 20 National Football Men's Championship is being completed and Delhi won it. So Maharaj, you have rolled down the successful first championship. How many days you have received in your hand? Actually, it was in 29th February 2024. All India Football Federation and President of All India Football Federation Kalyan Chaubey ji announced this prestigious tournament in the name of Swami Vivekananda will be organized at Ramkrishna Mission Narayanpur in April, like that they announced. And we had a vision and we wanted to organize one tournament in the name of Swami Vivekananda. But for that we thought that we will call few teams from India, means from corner, from West Bengal one team, from Delhi, like 10 to 12 team we will call, and we will organize one tournament in the name of Swami Vivekananda. And for that we sent one proposal to AIF to permit us. And then from the president of AIF, They liked the idea. he liked, and his proposal was, why you are doing only for 12 team? You can go for whole India National. 32 national tournament. We will organize in the name of Swami Vivekananda Under 20 national championship. So we accepted it is gladly, and but because it was not in their calendar, so first time they wanted to organize fully by Ramkrishna Mission. Only they will arrange for conveyance of the team from different state. They will come for their transportation charges. That will be bear by AIF, and all other things, organizing this tournament, food accommodation of all the teams, that all things will be arranged by Ramkrishna Mission. If possible, then we will go ahead. So we accepted that challenge. Okay, we will arrange. First time in the name of Swami Vivekananda, that's why we are arranging. So this time we arranged. We our many staffs, our monastic members, they worked a lot, and successfully completed this tournament for last 40 days. Day and night. 45 days he told me. Yeah, like it is the longest. Actually, total tournament was 40 days, but before 2 days they came and teams came. It was from 12 to 22, but from 10th teams already started to coming here in Narayanpur. Okay. And all state teams came here and they stayed here. They were very satisfied. Every team. I think if you talk to them, they said ki no complaint, no complaint from any team. So Maharaj, there is one more question. Although Ramkishan Mission has a football academy, so how does it help you to roll down this such a national level pan India football competition? The same thing Commissioner was saying. It was a pan India, people from all over the part of India, from Ladakh to Manipur to from top of the Himalayas till the bottom of the Chennai, the people are Pondicherry coming. So how you manage different diversity, different culture with your little, soldiers of Ramkishan Mission Football Academy? Actually, can I talk in Hindi? Yes, Maharaj. So actually क्या है कि स्वामी विवेकानंद का जो रिलीजन जो बोलते हैं हम लोग, धर्म को हम लोग जिस पथ पर चल रहे हैं स्वामी जी के आइडियाज़ को लेके, इसमें कोई कास्ट क्रीड का स्थान नहीं है, यहाँ पे कोई भाषा का स्थान नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है एक सोल से दूसरे सोल का मिलाप, और वो है पूरे इंडिया के जो लोग हैं हम लोग भारतवासी। स्वामी जी ने अपने स्वदेश मंत्र में बोला है, हे भारत तुम मत भूलना कि तुम्हारे आदर्श सीता सावित्री दमयंती है, तुम्हारे मत भूलना, गर्व से बोलो भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे शिशु सैया है, भारतवासी मेरे यौवन का उपवन है। सब कुछ मैंने अपने भारत जो है मेरा अपना है। तो इसमें हमारा कोई अलगपन नहीं है कि ये अलग स्टेट से आ रहा है, ये अलग स्टेट से आ रहा है, ये जम्मू से आ रहा है या
ये लद्दाख से आ रहा है और ये कन्याकुमारी या तमिलनाडु से आ रहा है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था यहाँ पे। हमने पूरे टीम्स का अरेंजमेंट इन वन हॉस्टल, एक ही हॉस्टल में हमने 8 टीम को रखा था, साइड बाय साइड रूम, कोई रूम भी डिस्टेंस पे नहीं था, एक रूम के बाजू में दूसरा टीम रुका हुआ है, वो आपस में मिल भी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक ही डाइनिंग हॉल में सब लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। तो ये जो था, इससे और उनमें दोस्ती भी बढ़ी है। और पूरे 40 दिन में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है हॉस्टल में रहते वक्त या मैदान में भी। खेलते वक्त छोटा मोटा वो लग जाता है किसी को, वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल कोई भी अप्रिय घटना बोलिए या आपस में कोई झगड़ा तनाव कुछ भी नहीं था। हाँ, ये आपके सेक्रेटरी महाराज स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि लोगों को चैलेंज लग रहा था कि हम अगल बगल में रखवा रहे तो टेंशन ना हो। Exactly. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने प्रायः सभी टीम मेंबर्स, टीम मैनेजर्स या कमिश्नर ने भी यही कहा कि यहाँ एक स्पिरिचुअल पावर है जो सारे घुसते साथ आश्रम में सबको शांत कर देता है। और ये इतनी लॉन्ग ट्रैवलिंग से जब आ रहे थे, दिल्ली की टीम ने तो कहा कि उन्हें रास्ते में डर लगने लग गया था कि इतने जंगल है, लेकिन जब यहाँ पहुँची तो उनको बहुत सीरीन इन्वायरमेंट लगा, एकदम शांत, पीसफुल। तो एक इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट सारे टीम मेंबर्स, प्लेयर्स, मैनेजर्स ने कहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो देखिए, एक तन्मात्रा होता है, तन्मात्रा यानी कि एक एनवायरनमेंट, एक वाइब्रेशन यहाँ पे काम करता है आश्रम में। क्यों? वो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे सब समय है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे है ही नहीं आश्रम में। एक तो सब साधु ब्रह्मचारी लोग जो है साधन भजन करते हैं, अपने काम के प्रति पूरा समर्पित है, और पूरे जो साधु ब्रह्मचारी जो हमारे आश्रम में है, प्लस जो एम्प्लॉयज़ लोग हैं, सबका एक ही उद्देश्य हमारा लेके हम लोग चलते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं इनको सर्व करना है, इनको सेवा देना है। तो वो उद्देश्य जो है, और उसके पीछे भी हमारा एक जैसे मोनास्टिक मेंबर का विशेष करके रहता है कि हम सबके अंदर, उन बच्चों के अंदर भी ईश्वर का भाव देखने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारा उसको जब सेवा करते हैं तो उसके माध्यम से हमारा अपना साधना भी हो जाए, मतलब शिव ज्ञानी जीव सेवा जो मैंने तो वो हम लोग कोशिश करके उसी भाव से हम लोग उनका सेवा करते हैं। इसके रिटर्न में हम लोग कुछ नहीं चाहते कि हमने इतना सेवा किया है, इतना लोगों के लिए सर्व किया है, ये सब कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए हमको कोई वाह बोले, हमारे पेपर में छपे, न्यूज़ में आए, ये सब जरूरी नहीं है। वो तो ठाकुर जी की कृपा है, जो न्यूज़ में आना है आएगा। लेकिन that I also experienced, monks don't easily open up about their work. अपना सर्विस दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एक भाव यहाँ पे है, पूरे तन्मात्रा इस आश्रम के अंदर है। और एक कोई भी कितना भी उद्दंड हो, कितना भी खराब हो व्यक्ति, एक बार आश्रम के कैंपस के अंदर एंट्री करने से ना ऑटोमेटिकली उसका माइंड जो है काम डाउन हो जाता है। वो फील करता है कि नहीं, मैं कहीं कुछ तो अलग फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, ये क्यों हो रहा है उनको पता नहीं है, लेकिन वो हो रहा है। तो इसके पीछे जो एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन काम कर रहा है, जो हमारे बच्चे, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे साधु लोग मेंटेन कर रहे हैं। इसी से ये मतलब ये भी एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल मैजिक है, ये मैजिक नहीं है, कांस्टेंट प्रैक्टिस और साइंस है ये, और उसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप देखे होंगे हमारा जितने भी, जैसे ये टूर्नामेंट अलग से जो भी चैंपियनशिप होता है, उसका एक जो ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ये सब हमारा अलग ही था, हमारे हिसाब से था। हर टीम को हमने ठाकुर माँ स्वामी जी के सामने उनको मैंने प्रणाम करके, उनको पूजा करके सभी टीम का हमने स्वागत किया है। तो ये जो हम क्लोजिंग सेरेमनी भी आपकी ठाकुर माँ स्वामी जी को लेकर ही हुई है। इवन हमारे फाइनल मैच के पहले भी ठाकुर माँ स्वामी जी को प्रणाम करके हमने शुरू किया है, ताकि ऐसा कोई विजिबल प्रेजेंस रहा है। विजिबल प्रेजेंस हम साथ लेके चलते हैं। हमारे ठाकुर माँ स्वामी जी हमारे साथ में ही है, हर कार्यक्रम में, हर चीज में, तो उनको भी हमारे साथ में रखना हमको। अच्छा महाराज, मेरा एक प्रश्न और है, उनकी विजिबल और इनविजिबल पावर तो यहाँ है, लेकिन आप लोग एक इवेंट मैनेजर नहीं है। जितना मैंने स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स प्लेयर से बात की, सबने कहा बिल्कुल टाइम और पंक्चुअलिटी मेंटेन की गई, पिकअप से लेकर ड्रॉप करवाना और उनको खाना मिलना, किसी भी चीज़ में कोई भी मतलब कोई त्रुटि नहीं उन्होंने किसी ने कहा। तो ये आप लोग एज ए मॉन्क होते हुए कैसे डिलीवर कर सके, ये मेरे लिए हमेशा क्यूरियोसिटी रहा है कि रामकृष्ण मिशन में टाइमिंग और डिसिप्लिन, दिस इज द टू थिंग। हमारे रामकृष्ण मिशन के जितने भी केंद्र हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि पंक्चुअलिटी हमारे सुबह 5 बजे से लेकर हो या 4 बजे से, बेलूर मठ जैसे हमारे हेडक्वार्टर है, सुबह 4 बजे मंगल आरती होती है। यहाँ पे 1 घंटा लेट होता है 5 बजे, लेकिन 4 बजे मैंने 4 बजे 1 मिनट इधर उधर नहीं कर सकते हम। इवन सारे सेंटर्स में ही
जितने बजे मंदिर की पूजा होनी है, जितने बजे सबका ब्रेकफास्ट होना है, जितने बजे सबका भोजन होना है, संध्या आरती होना है, एक फिक्स टाइम है ही। और उस टाइम को हम लोग एकदम छेड़छाड़ नहीं करते, नहीं आज थोड़ा लेट हो रहा है तो चलो 10 मिनट बाद में हम आरती करेंगे, 10 मिनट बाद भोजन करेंगे, ऐसा नहीं है। टाइम में होगा, उस समय आप आ नहीं पाए तो अलग बात है, आप मत आओ, लेकिन सबके लिए वही टाइम है। तो ये जो है हम लोग सबके लिए फिक्स किया हुआ है, हमारे बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। और ये पंक्चुअलिटी हम लोग अभी हम लोग के लिए नॉर्मल हो गए, हमको ऐसा लगता नहीं कि मैं आपके बिल्कुल सिस्टम में आ गया। सिस्टम में आ गया। तो इस सिस्टम में बाहर के जैसे ये टीम लोग आके रुके थे, ये भी बहुत कुछ सीखे हैं, पंक्चुअलिटी में भी आ गए हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं टाइम हो गया भाई, इतना बजा है, भी चलो खाना खाने का समय हो गया। तो ये फीलिंग हमको भी होने लगा। इवन डाइनिंग हॉल के अंदर घुसते वक्त खाना खाने के लिए जब हम डाइनिंग हॉल में जाते हैं तो चप्पल उतार के जाना चाहिए, ये भी हमने सीखा है। ऐसा कुछ टीम के मैनेजर्स लोग मुझे बोले। एक मैनेजर ने तो कहा कि हमारे बच्चों को 5 स्टार 7 स्टार में रहने की आदत है, लेकिन यहाँ पर वो लोग खुद कपड़ा धो रहे हैं, खुद बर्तन मल रहे हैं, और ये इनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। ये इनके अंदर एक डिसिप्लिन इंस्टिल किया कि इनके अंदर ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। तो इस टूर्नामेंट से हमको बहुत कुछ हमारे यहाँ से लोग लेके गए, जो टीम्स आए थे करीब 672 टीम मैंने मेंबर्स अलग अलग 32 टीम के आए हैं यहाँ पे। वो लोग सब कुछ ना कुछ लेके जा रहे, कोई खाली हाथ नहीं गए। भले ही फाइनल में जीतने का ट्रॉफी लेके जा रहे दिल्ली, लेकिन बाकी टीम्स भी कुछ ना कुछ सीख के गए, कुछ लेके जा रहे। और अगले साल फिर से इसी समय होगा, मैं आशा करता हूँ फिर से वो लोग आने के लिए उत्सुक होंगे। महाराज, मैंने सुना है कि आप भी बचपन में फुटबॉल खेलते थे, तो डज इट हेल्प यू और डज इट मेड यू इंटरेस्टेड इनटू द फुटबॉल? स्पोर्ट्स पर्सन ही स्पोर्ट्स का महत्व समझ सकता है। भले ही वो 2 दिन के लिए खेला होगा या बचपन में 2-4 साल खेला होगा, लेकिन जब खेलते हैं ना, कोई भी गेम्स अगर खेला होगा बच्चा, तो बड़ा होकर गेम्स के प्रति एक तो उसका झुकाव रहता ही है। तो मेरा भी वैसे ही था, मैंने भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट कभी नहीं खेला है, लेकिन बचपन में छोटा मोटा ऐसे स्कूल लेवल में खेला हूँ। मैंने सुना आप गढ़चिरौली जैसे डिफिकल्ट एरिया से आए हैं। हाँ, तो मैं वॉलीबॉल भी बहुत खेला। वॉलीबॉल मैं यूनिवर्सिटी में भी खेला हूँ, मैंने कॉलेज लेवल में भी जाके मैं वॉलीबॉल खेला। तो ये गेम्स मेरा मैं खेलता रहा। और हमारे यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, मैं 8-8.5 साल हो रहा है, तो मैं जब आया तब से देखा मैं यहाँ के बच्चों में जो पोटेंशियल है, हमारे अबूझमाड़ के जो आदिवासी बच्चे हैं और इनमें जो खेल का प्रतिभा है ना, उनको बढ़ाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। और आज जो भी हमारा ये आर.के. फुटबॉल एकेडमी उभर के आया है, उसके लिए नो डाउट हमारे बड़े स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। महाराज ने, हमने जितना डिमांड किया है, जो भी करना चाहा है, महाराज ने एक्सेप्ट किया। और महाराज खुद भी इन्वॉल्व हो गए इसमें, और खुद इसमें इन्वॉल्व होकर और करने लगे। मैंने तो सुना था कि वो आपके बच्चे ग्रास पे प्रैक्टिस करते हैं और वो किसी आर्टिफिशियल टर्फ में हार कर आए, तो महाराज ने डिसीजन लिया कि वी विल मेक एक आर्टिफिशियल ग्राउंड, और उन्होंने लैक ऑफ फंड में भी ये बनाया। हाँ, लैक ऑफ फंड में बरसात के दिनों में प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, बच्चे लोग खेल नहीं पाते, तो करीब 2-3 महीना हमारा बहुत गैप हो जाता है। और उसी समय मेन टूर्नामेंट हो जाता है, जैसे सुब्रतो कप के लिए बच्चों को तैयारी करना होता है, या अलग अलग जो स्टेट लेवल का स्कूल गेम्स होते हैं। तो यही बरसात के पीरियड में अगर बच्चे खेल नहीं पाएंगे तो कैसे, तो इसके लिए हमने एक प्लान किया था, बड़े स्वामी जी को बोला, तो महाराज ने बहुत उसको ग्लैडली एक्सेप्ट किए, और महाराज ने खुद इसको परस्यू करके पूरा ये ग्राउंड तैयार किया। महाराज, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सुना कि अब नेक्स्ट 7 to 10 टूर्नामेंट यहीं पर किए जाएंगे, स्वामी विवेकानंद अंडर 20 मैंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को मिल रही है, क्योंकि एक बहुत रिमोट एरिया में है, हम सब जानते हैं, और छत्तीसगढ़ के पिछले इलाके में होने के बावजूद आपने इतने अच्छे से सब कुछ डिलीवर किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी और आपकी तैयारियाँ आने वाले दिनों में कैसी रहेंगी? एक्चुअली हमने ये तो पहली बार जो है स्वामी विवेकानंद टूर्नामेंट जो मैं पहले बताया आपको कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसको करवा दिया है, लेकिन इसमें जो फंड हमको ज़रूरत था वो हमको पूरा नहीं मिला है। आश्रम के खुद के फंड से ये टूर्नामेंट कराना पड़ा। करीब 50-60 लाख रुपये हमारा खर्चा, अभी हिसाब करने से पता चलेगा, मोर देन दिस मैंने खर्चा हुआ है। तो इसके लिए हमको थोड़ा बहुत निको कंपनी ने दिया है, 10 लाख रुपये दिया था, बाकी किसी कहीं से भी हमको नहीं मिला है। छोटा छोटा जो 10-15 हज़ार करके एक जन डोनेशन दिया है, वही हमको मिला है, और हमने बाकी आश्रम से ही लगाया है पूरा। तो अभी भविष्य में भी हम लोग ऐसे टूर्नामेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा तो हम और बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि हमारा रामकृष्ण मिशन नारायणपुर का खुद का कोई इनकम सोर्स नहीं है। अलग से हम इनकम करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा फार्म नहीं है, या फिर ऐसा कोई दुकान नहीं है जिससे हम सामान बेच के हम लोग इनकम हो जाता है।
तो ऐसा कुछ नहीं है। हमको अपने मैंने स्पॉन्सर्स की जरूरत आप लोगों को लगती है, जरूरत है, डिवोटीज के ऊपर हम लोग निर्भर करके हमारे आश्रम का कार्य। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हमने अपील किया हुआ है। तो हालांकि ये इलेक्शन आ गए इस साल और आचार संहिता के कारण गवर्नमेंट ने हमें कुछ हेल्प नहीं कर पाया, मैंने ये क्या बोलते हैं मॉनिटरी कुछ हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे हेल्प उन्होंने किया है। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए लोकल प्रशासन से बहुत हेल्प मिल गया हमें। तो ये जो है ये टूर्नामेंट आगे भी हम लोग कराना चाहेंगे, लेकिन बशर्ते हमको कुछ सपोर्ट मिल जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो और बेहतर हो जाएगा। थैंक यू महाराज फॉर द वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ से बात करने के लिए। दिस इज़ माधवी श्री फ्रॉम रामकिशन मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़। धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई इस सक्सेसफुल रोल डाउन के लिए ऑफ अवार्ड। थैंक यू।